हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका स्वागत है। अगले क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू विस्कोसिटी फॉर अ लेमिनार फ्लो इन पाइप कितना होगा। आपको बताना है कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू विस्कोसिटी फॉर अ लेमिनार फ्लो इन पाइप इज़ व्हाट इज़ द राइट आंसर इज़। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज़ 32 म्यू VL अपॉन WD²। डी डायमीटर ऑफ अ पाइप है, L लेंथ ऑफ अ पाइप है, V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, म्यू इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड W इज़ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच विस्कस फ्लो इज टेकन प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा C 16 अपॉन RN। RN हमारा यहाँ पे होगा रेनॉल्ड्स नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन अ केस ऑफ लेमिनार फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू। आपको ये बताना है कि लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो जो कि प्रोपोर्शनल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 341 का ए, वेलोसिटी। लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a moving fluid mass may be brought to a static equilibrium position by applying an imaginary inertia force of the same magnitude as that of the accelerating force but in opposite direction. The statement is called, this statement is called C यानी D'Alembert principle. Next, the D'Alembert principle जिसका यूज़ करते हैं for changing the dynamic equilibrium of a fluid mass in a static diagram. This statement, are you agree? Yes, this statement is correct. यानी D'Alembert principle जिसका यूज़ करते हैं for changing the dynamic equilibrium of a fluid mass is static equilibrium. Next is when a tank containing liquid moves with an acceleration in the horizontal direction, then the free surface of the liquid, राइट आंसर हो जाएगा सी यानी फॉल्स ऑन द फ्रंट एंड। नेक्स्ट, एन ओपन टैंक कंटेनिंग लिक्विड इज मेड टू मूव फ्रॉम अ रेस्ट with a uniform acceleration and the angle theta which the free surface of a liquid makes with the horizontal is such that, राइट आंसर हो जाएगा ए यानी tan थीटा बराबर A अपॉन G। ए हमारा क्या हो जाएगा horizontal acceleration of the tank and G is the acceleration due to gravity. Next question, an open tank containing liquid is moving with an acceleration on an inclined plane. The inclination of the free surface of the liquid will be dash to the acceleration of the tank. The right answer हो जाएगा इसका B, that is your directly proportional. Next is a closed tank is completely filled with an oil. If it is made to move with a horizontal acceleration, the pressure at the back end will be more than the front end. The right answer हो जाएगा इसका is A, that is your correct. Next, the torque required to overcome viscous resistance of a foot step bearing is, क्या होगा राइट आंसर is D, that is म्यू पाई स्क्वायर एन आर की पावर 4 अपॉन 16t। म्यू हमारा विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल हो जाएगा, एन स्पीड ऑफ द शाफ्ट, आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ द ऑयल फ्लेम। नेक्स्ट हो जाएगा द पावर एब्जॉर्ब इन ओवरकमिंग द विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ फुट स्टेप बेयरिंग इज, व्हाट इज द राइट आंसर इज बी, दैट इज म्यू पाई क्यूब एन स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 अपॉन 1800 टी। नेक्स्ट, तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलर बेयरिंग इज, क्या होगा इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज डी, दैट इज योर म्यू पाई स्क्वायर एन अपॉन 16t ब्रैकेट में R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4। Next is in a foot step bearing, if the speed of the shaft is double, then the torque required to overcome the viscous resistance will be
A answer is double. Next, in a foot step bearing, the radius of the shaft is doubled, then the torque required to overcome the viscous resistance will be D 16 times. Next, the coefficient of viscosity may be determined by D यानी all of these: capillary tube method, orifice type viscosometer and rotating cylinder method. Next, the coefficient of viscosity is given by, तो इसकल टू हो जाएगा म्यू इक्वल टू ब्रैकेट 0.0022 t माइनस 1.8 अपॉन टी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो दिस आपको बताना कि ये इक्वेशन जो होती है क्या डिटरमाइन करती है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बाय। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी यानी ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, आंसर हो जाएगा सी इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड डैश एज द प्रेशर इंक्रीजेस, राइट आंसर इज सी increases यानी bulk modulus of a fluid increases as the pressure increases. Next is the volume of a fluid dash as the pressure increases, right answer is B यानी decreases. The volume of a fluid decreases, the pressure increases. Next, the specific weight of compressible fluid does not remain constant, true. Next, the pressure of air dash with the increase of height from the surface of the earth. The right answer is B, that is your decrease. And the pressure of air decrease with the increase of height from the surface of the earth. Next, बताना आपको जो celebrity of a pressure wave in a fluid is given by, कितना होगा? राइट आंसर इज बी, दैट इज स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ के अपॉन रो। के हमारा बल्क मॉडुलस है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। आपको बताना है कि जो क्लियरिटी यानी वेलोसिटी है ऑफ अ प्रेशर वेव इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन रो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इन एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीम to the velocity of sound wave is known as a match number. This statement is true or false? This statement is true यानी yes. Next, when the match number is less than unity, तो वो क्या कहलाता है? अगर मैच नंबर की वैल्यू लेस देन यूनिटी है तो वो आपका कहलाएगा ए यानी सबसोनिक फ्लो। और अगर मैच नंबर की वैल्यू इक्वल टू यूनिटी है तो वो फ्लो कौन सा कहलाएगा? क्या वो सोनिक फ्लो कहलाएगा? ये पूछ रहा है तो आपको बताना है यस। अगर मैच नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो सबसोनिक फ्लो, और मैच नंबर की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो सोनिक फ्लो कहलाएगा। अगर मैच नंबर की वैल्यू डैश और डैश के बीच में कहलाएगा तो सुपरसोनिक फ्लो कहलाएगा। क्या वैल्यू होगी? उसकी वैल्यू जो होगी वो 1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 to 6। अगर 1 to 6 के बीच में है तो वो कहलाएगा सुपरसोनिक फ्लो। नेक्स्ट, व्हेन द मैच नंबर इज़ मोर देन 6 तो वो फ्लो क्या कहलाता है? अगर वो मैच नंबर की वैल्यू जो है आपका मोर देन 6 है तो वह कहलाएगा हाइपरसोनिक फ्लो। नेक्स्ट, अ फ्लो इज़ कॉल्ड सबसोनिक इफ़ द मैच नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो मैच नंबर की वैल्यू इसमें केस में 1 लेस देन यूनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक फ्लो जो कि कहलाता है सोनिक तब मैच नंबर की वैल्यू जो है वो यूनिटी है। वही बताना है स्टेटमेंट इज़ राइट या ट्रू? यस, ये एग्री। नेक्स्ट, अ फ्लो इज़ कॉल्ड सुपरसोनिक। सुपरसोनिक के केस में क्या होगी? मैच नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मैच नंबर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 से लेकर 6 के बीच में, यानी आंसर हो जाएगा सी। हाइपरसोनिक केस में मैच नंबर की वैल्यू कितनी होती है? हाइपर केस में मैच नंबर की वैल्यू क्या होगी? बिटवीन 1 to 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मैच नंबर की वैल्यू हाइपरसोनिक के केस में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, दैट इज़ योर मैच नंबर की वैल्यू। फॉर सुपरसोनिक मैच नंबर की वैल्यू हो गई देन इज कॉल्ड सबसोनिक फ्लो। देन मैच नंबर की वैल्यू यहाँ पे जो बात की जा रही है, अगर द फ्लो इज कॉल्ड सोनिक फ्लो। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 369। अगर यहाँ पे कह रहा है कि एक फ्लो जो इज कॉल्ड हाइपरसोनिक इफ़ द मैच नंबर, हाइपरसोनिक के केस में जो मैच नंबर की वैल्यू यहाँ पर नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट, अ पॉइंट इज़ अ कंप्रेसिबल फ्लो
वेयर द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ ज़ीरो, वो क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है स्टैग्नेशन पॉइंट। नेक्स्ट, अ प्रेशर एट स्टैग्नेशन पॉइंट इज़ ऑलवेज लो, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी दैट डिसएग्री। नेक्स्ट, व्हेन अ plate is immersed in a liquid parallel to the flow, it will be subjected to pressure than if the same plate is immersed perpendicular to the flow. The right answer is A, yani less than. Next, the force exerted by moving fluid on an immersed body is directly proportional to the rate of change of momentum due to the presence of the body. The statement is called, this statement is called D, yani Newton's law of resistance. Next, the Newton's law of resistance is based on the assumption that the right answer is D, all of the above, यानी planes of the body are completely smooth, space around the body is completely filled, and fluid particles do not exert any influence on one another. Next is, whenever a plate is held immersed at the some angle with the direction of flow of the liquid, it is subjected to some pressure. The component of this pressure, the direction of the flow of the liquid, is known as, what is the right answer is B, यानी that is stagnation pressure. Next आपको बताना है कि whenever a plate is held immersed at the some angle with the direction of flow of the liquid, it is subjected to some pressure, and the component of the pressure at the right angles to the direction of flow of the liquid is known as the lift. Right answer is A, yes, true. Next, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंटल ब्लॉसियस रिलेशनशिप आपको बताना है कि जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर होगा इस लेमिनार का वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज़ ए, दैट इज़ योर 5x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर एन एक्स, 5x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर एन एक्स, यानी x यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द लीडिंग एज हो जाएगा, आर एन एक्स रिनॉल्ड्स नंबर बिटवीन नंबर्स एट द एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंटल ब्लॉसियस रिलेशनशिप द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इज द टर्बुलेंट फ्लो, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, यानी 0.377 एक्स अपॉन आर एन एक्स की पावर 1/5। नेक्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस इज रिड्यूस टू 0। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी एग्री दिस। Next, the force present in a moving liquid is, the right answer is D, all of these, यानी force present in moving liquid is inertia force, viscous force and gravity force. Next, the product of mass into acceleration of a falling liquid is called, वो क्या कहलाता है? inertia force. Next, viscous force is the dash shear stress due to the viscosity and the cross sectional area of flow, क्या कहलाएगा? The right answer is C, that is your product. Next, surface tension is the product of surface tension per unit length and the cross sectional area of flow. This statement is true या false? Right answer हो जाएगा इसका B, incorrect. The ratio of inertia force to the viscous force, inertia force upon viscous force, वो क्या कहलाता है? Right answer है A, Reynolds number. Next, the Reynolds number of a ship is dash to the velocity and length, हो जाएगा directly proportional to, Reynolds number is of a ship is directly proportional to the velocity and length. Next, the ratio of inertia force to the gravity force, वो क्या फ्रॉड्स नंबर कहलाता है? आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज़ द ट्रू, यानी इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स जो हो जाएगा तो देन वो कहलाएगा फ्रॉड्स नंबर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द डैश इज कॉल्ड यूलर्स नंबर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इनर्शिया फोर्स और अगर प्रेशर डिवाइड कर देंगे प्रेशर फोर्स से तो वो कहलाता है आइलर नंबर, और इनर्शिया फोर्स और जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है फ्रॉड्स नंबर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, क्या वो वेबर नंबर कहलाता है? आपको बताना है। यस,
इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, यानी इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो फोरियर नंबर हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स हो जाएगा तो आयलर नंबर हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा तो वेबर नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द व्हाट इज राइट आंसर इज ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का जो रेशियो होता है वो कहलाता है फ्रॉड्स नंबर। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो डी वाला जो है वो सही है, यानी इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का जो रेशियो होता है वो कहलाता है वेबर नंबर। नेक्स्ट, आयलर नंबर इज़ द रेशियो ऑफ, आयलर नंबर क्या है? आयलर नंबर रेशियो है इनर्शिया फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स का। आयलर नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट, अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं आयलर नंबर का तो वह क्या न्यूटोनियन नंबर कहलाता है? यस, अगर आयलर नंबर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो न्यूटोनियन नंबर कहलाता है। नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन is match number. The value of bulk modulus of a fluid is required to determine match number. Thanks for watching and sharing.